A very good afternoon to all the delegates present today. Myself, Dr. Sangeeta Pillai from Bharuch, Gujarat. On behalf of Ignited Minds by PHF, I warmly welcome you all to the 150th lecture of this unique learning series, Guruji Ke Saath Guruvar 2.0, which was launched on 10th April 2025 under the guidance and mentorship of our Guruji, Dr. Liaquat sir. Before we begin today's session, I would like to share a few words about PHF, that is Promicelon Homeopathic Forum, which was founded by Dr. Liaquat Namuli sir with the vision of educating homeopaths and inspiring GPs to return back to the practice of homeopathy. Through his dedication and guidance, more than 2,000 GPs have successfully transformed their practice towards homeopathy. We regularly organize various academic activities to reach maximum number of homeopaths who are unable to practice homeopathy confidently due to a lack of proper guidance and mentorship. Ignited Minds by PHF is a pioneer platform for free homeopathic learning, which was started on WhatsApp and is now on Telegram. Today, nearly 3,000 doctors are learning and growing together daily through our Telegram group. Previously, we have successfully completed a free webinar series of 100 lectures on Zoom, and the recordings are available on our YouTube channel, Ignited Minds by PHF. We have also introduced a special sub-series within these lectures titled What Women Want, where we explore women's heart, emotion, and needs, enabling us to understand them better and heal them more effectively in our clinical practice. It gives me immense pleasure to introduce today's speaker, our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namali sir, an eminent and passionate homeopath, teacher, mentor, and recently a poet from Nashik. Sir has more than 31 years of rich clinical experience and has conducted over 300 seminars and more than 250 webinars across the country. He has also organized several national level seminars dedicated to specialties such as diabetes, cancer, infertility, dermatology, pediatrics, and many more. Sir is the founder and guiding force behind Ignited Minds, the PHL. One of Sir's most significant contributions to homeopathy is the development of the unique MML mind method by Dr. Liaquat, which emphasizes understanding and prescribing based primarily on the patient's mental and emotional state. His guiding principle has always been simple yet profound. Empathy is his mantra. Dr. Liaquat Namuni sir is also widely recognized as a master observer of gestures. Through his keen observation and clinical insights, he has introduced several valuable gestures into our case-taking process, enriching our understanding of patients and proving to be a blessing for homeopaths everywhere. Sir is also the author of the best-selling book Humanopathy, which has inspired countless practitioners, myself included, and we can't wait for the second edition, sir. Words can hardly do justice to Sir's contribution to homeopathy, education, and mentorship. On behalf of all the delegates present today, I extend a heartfelt welcome and express our gratitude for your continued guidance and inspiration. Sir, it's an honor to be attending your session. With this brief introduction, I would now like to hand over the session to you. Welcome, sir. Please take over. Brief introduction. Thank you, Singu. Always speaks so profuse about me. Thank you, Vita. This comes from a daughter of ours. Sangeeta has worked with me in my clinic for many years, like during her college days. She was Yes, one sir. of the provers that I proved the remedies. Yes, sir. And special place in my heart. Of course. Daughters have, and she's a very intelligent doctor. She's practicing in Gujarat, friends. So you can refer cases to her if you have cases from Gujarat nearby. Thank you, sir. So, thank you. Today is what's the date? 4th June 2026, Thursday. This is the first Thursday of June. My turn to take the lecture. So here I am actually. Um, it's very hot here. It's hot and it's rained also in Nashik. Okay. So let's start the lecture. It's one of my favorite cases because this case has taught me this remedy quite a lot. This case of a lady of 43 years old. Okay. Um, she came to me from quite far by reference of a doctor of that area, quite far, like almost like other end of India. She flew from there to Bombay, and from there she came by taxi to see me. So much she had spent to see me. Okay, which was more than my consultation
That time my consultation was 1,000 rupees. She had spent like 10,000 odd rupees on the travel and flow. You can imagine. The lady was plump, quite plump, beautiful, sharp nose, beautiful tall forehead. She was wearing bindi and something in the ears. It's a nice diamond like shiny earrings and she was looking quite decent. Okay. She was in Salwar Kurta. Okay. Um, what is it called? No dupatta. Hmm? But I remember she was a white dress with very delicate and fine design on it. Okay, fair lady and bit plump, like she was having 90 plus weight. She had complained of knee pains, obesity was there, hypertension, and she was diagnosed with some heart irregularity. Okay, her pulse and all used to be irregular. Okay, just a moment, please. Yeah. So this is the case. I asked her, what is so pressing in life? Where do you feel unstable in life? Tell me about yourself, like what do you do and all. So she's an engineer working in some multinational company, okay, in the same city of her husband's. There is no stress at the workplace as such, except that she has a responsible post there. So she has to give best of her in the workplace, which she does very well. And I said, tell me about your family. So she was like, okay, my family consists of mother, father. Uh, Mother, father lives quite far from her place. In her family, she has her husband and a daughter. I said, what is your husband doing? She said, she's also working in the same city. He has a business. Uh, Fine. What else? I said, any stress, please tell me. Because she had come from so far, I thought I should know everything about her. So I wanted to know about her Susral, Micah, and her work and family, all the things I wanted to know because if she had come from so far. So she said, in my family, I said, tell me about your husband then. So she said, I'm his second wife. He's already married. He has two elder kids, uh, staying far away from them. Okay. I said, why did this happen? If you don't mind. She said, we met in a spiritual retreat. Then we started speaking to each other. Then I came to know that he is not happy in his marriage. His wife is a very suspicious lady, underwent psychiatric treatment also. But she is a lady who does a lot of commotions and troubles him a lot. So they were separated from each other. They were they were staying in the same house but separately. He had no family life as such from his wife. We fell in love, and it was a divine connection, doctor. I felt a very spiritual connection with him. So one fine day we decided to stay together. So I left my parents, I came and stayed with him.
She was in living with him for some years. Then she decided to have a child, accidentally, of course. Then she delivered a baby girl, of course, with cesarean section. That time she wasn't plump. Husband is 12 years elder than her. This girl is the only child of her family, and they're quite rich. And then I said, "What made you fly from so far to me? You tell me. There must be some serious reason." So she said, "Yes, doctor. My doctors are telling I have some heart condition, irregular heartbeats, and I may require pacemaker." So I thought, one of my friends told me, one of my colleagues told me about you, and one of your students is staying in the same town. He also recommended your name to me, so I came to you. So tell me what happened in your life recently or in year past, which must have affected you emotionally. Then she said, "Doctor, hope this stays between you and me." I said, "Of course, it stays between us. Now that we come from so far, tell me." She said, "डॉक्टर साहब, बचपन से हम मैं बहुत अच्छे एरिया में नहीं रही हूँ, बट हमारा होटल का बिजनेस है, बहुत अच्छा है। मेरे पापा के होटल है, शराब की दुकान है, बियर बार है, लॉजिंग है। एरिया हमारा अच्छा नहीं था, लेकिन हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, इंजीनियर हूँ, अच्छा कमाती हूँ।" मैं बोला, "देन व्हाट इज द पॉइंट, वेयर इज द स्ट्रेस?" शी सेड, "क्या हुआ लास्ट ईयर, मतलब 5-6 महीने पहले, मेरे हस्बैंड ने बंटवारा किया है, उनके फैमिली का बंटवारा हुआ। ओके, husband and her brothers got separated, and there was distribution of the wealth, the property, the inherited property between the brothers. So what happened is, after that husband, I said, "Then what happened? Did your husband get his share?" She said, "Yeah, he got everything." I said, "Where is the problem then?" She said, "The problem is my husband has given property to his sons from first marriage, वहां की जो भी है प्रॉपर्टी, और यहाँ का घर उसने बोला कि ये आपके लिए, मतलब मेरे लिए। बट सर, ये घर मैंने खरीदा हुआ है, इसके अंदर मैंने मेरे पैसे लगाए हुए हैं सारे के सारे। मेरे हस्बैंड का इसके अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि ये घर मैं तुझको दे रहा हूँ। इसके बाद डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तकलीफ शुरू हुई। Then I said, how did you react? सर, तब से मेरा तो मन ही नहीं होता है उनके बारे में अच्छा ही लगता है। मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ, बहुत चिड़चिड़ करती हूँ, उनके साथ बहुत झगड़े करती हूँ। और सर, अभी उनके साथ मुझे मन भी नहीं होता है किसी बात। हम लोगों में कुछ फिजिकल रिलेशन भी नहीं है, हुआ भी तो वो थोड़ा सा कन्विंस करते हैं मुझको, बट मैं उतना इन्वॉल्व, इनफैक्ट मैं इन्वॉल्व ही नहीं होती उस चीज में, जबकि हम लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व थे 2 साल पहले। और अब, और सर, मैंने क्या नहीं किया इनके लिए। ये मेरी हालत देखिए आप, मेरे बाल देखिए, उसके बाल भी सफेद हो चुके थे, शी वॉज ग्रीन है। तो मैं बोला, ये आपने क्यों, आप पर क्यों ध्यान नहीं देते हो? आप तो आईटी में है। हाँ डॉक्टर साहब, बट मुझे उनकी उम्र के हिसाब से दिखना पड़ता है, तो मैं अपने आप पे ध्यान नहीं देती हूँ। नहीं तो क्या, ग्रे आजकल बाल सफेद होना कौन से इतना ही है। मैं अपने आप पे ध्यान नहीं देती हूँ, मैंने कभी अपने वजन पे भी ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर साहब, मैंने हर चीज उनको बताई,
मैंने अपनी फैमिली छोड़ी। मैं उस वक्त 22 साल की थी जब मैंने इनसे शादी किया। ये उस वक्त 36 ईयर्स के थे। So there is a 14 years gap between them. She was 22 and this man was 36. Doctor, I was a virgin. I should not tell you, but I'm telling you. I did not fall in love with any person in life. मैं बहुत स्पिरिचुअल। हमको जो भी बाबा या नाम नहीं लूंगा, जो भी हम लोग स्पिरिचुअल रिट्रीट में मिले, हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे। तो मैंने फिर आप क्या चाहती हो, क्या कर सकती है डॉक्टर साहब? मैं, मुझे कोई रास्ता नहीं है, कहीं नहीं जा सकती। और ये इंसान ने सारे पैसे, मुझे लगा कि इस सेविंग, मैं अपने सारे पैसे घर के लिए खर्च करती थी। मैंने कभी भी कोई चीज का कभी उनसे डिमांड नहीं किया। मतलब मैंने कभी ये चीज के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे लग रहा था कि ये शायद इनके पैसे वगैरह जो है तो बेटी के फ्यूचर के लिए जमा कर रहे हैं। बिकॉज आई वॉज यूजिंग ऑल माई सैलरी एंड मनी एंड एवरीथिंग फॉर द फैमिली। मैं, उनकी माँ, उनके पापा, कैटरेक्ट ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट, क्या क्या नहीं मेरे इधर सब कराए। डॉक्टर साहब ये घर में जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर कराया। उसका भी खर्चा पूरा मैंने किया था। मैंने सोचा ही नहीं कभी इस बारे में। और यहाँ का इनका जो शॉप है, ये भी इन्होंने इनके बेटे के नाम पर किया हुआ है। इनके दो बेटे हैं। इनका गांव का बंगला, खेती बाड़ी, घर सब इन्होंने बेटों के नाम किया है और एक्स वाइफ के नाम किया है। चूंकि इनका डिवोर्स नहीं हो रहा था, हम लोग लिव इन में रह रहे थे। इतना भरोसा मैंने इन पे किया था। बाद में मैंने इनसे शादी किया, जब मैंने इनको बोला बहुत कि अब कर लेते हैं क्योंकि बेटी को नाम लगाना है स्कूल में, जरूरी है। मेरी बेटी बोलती है कि इंसान देखो फंसा रहा है, पर मैं हूँ कि पागल की तरह उनके लिए सब करती रहती हूँ सब। Listen, okay, मेरे तरफ से हर चीज क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट सर। मेरे अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं है। मेरे अकाउंट्स के पासवर्ड सब कुछ, कार्ड ये वो सब उनके पास है। और मैंने कभी उनसे मांगा भी नहीं कि तुम्हारे क्या है क्या नहीं है। दिस इज द केस। बोलिए। हाँ जी। हेलो, एनीबॉडी वांट्स टू? हेलो, या, नमस्ते सर। सर ये लेडी पहले लिव इन में रही है काफी सालों तक एंड बिफोर मैरिज शी गेव बर्थ टू अ बेबी, राइट? नो, अच्छा, ओके। या बिफोर मैरिज, यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा, अच्छा सर। And blindly she fell in love with a person who was so elder to elder to her, and that too in a spiritual retreat where she was like seeking spiritual some guidance or whatever. तो सर अभी उसे रॉन्ग सफर्ड लग रहा है बिकॉज हस्बैंड ने ऐसे एक्स वाइफ को या उन एक्स वाइफ आगे पहले वाले बच्चों को सब दे दिया है एंड ही जस्ट टुक हर फॉर ग्रांटेड कि शी इज वर्किंग एंड शी इज अर्निंग वेल। तो और जो इसने भी घर लिया था खुद के पैसों से, यही वो उसे खुद का ही उसका ही घर उसे दे रहा है। तो सर ये रॉन्ग सफर्ड एलिमेंट्स फ्रॉम डिसीव्ड या निग्लेक्टेड भी लग रहा है सर इसमें। neglected religious affections too much occupied with and moral feeling want of sir ले सकते हैं because she stayed in a live-in relationship and gave birth to a child before marriage। तो मैंने moral feeling want of लिया है। तो सर ये लेकेसिस मेरा आ रहा है सर। गुड गुड, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। और वेरी नाइस, बहुत अच्छे। रूब्रिक बहुत अच्छे लिए आपने। जी, और कोई? व्हाट डिड यू से? रिलीजियस अफेक्शंस, रिलीजन रॉन्ग सपोर्ट, है ना? जी।
और what did you say? Ailments from deceived being, है ना? Yes. What else did you say, doctor? So ailments from neglected being, religious affections too much occupied with, wrong suffered, moral feeling want of लिया मैंने सर, and deceive हो गई है ऐसे लगा मुझे धोखा हुआ है ना, साथ में रह के deceived, सही बात है, सर। पास तो लेके deceived होता है। हाँ सर, ये लैकेसिस तो ये सब कवर कर रहा है सर। ठीक। और बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। और कोई बोलो। Your rubrics are very good, doctor. Remedy is not. What else can you think about? उसका सिंपल रिएक्शन क्या क्या है? हस्बैंड के साथ चिट कर रही है, मन नहीं हो रहा है, इरिटेबिलिटी हस्बैंड टुवर्ड्स, गुस्सा कर रही है ऑब्वियसली, एंगर हाँ सर, टुवर्ड्स, एवर्जन एंगर, हाँ तो टुवर्ड्स, राइट? हाँ हाँ सर, तो ये सेपिया भी आ सकती है आगे, सेपिया देखो भी ना, है। आप देखो ना, ये 3 रूब्रिक लेने पर क्या आता है? एक मिनट। एवर्जन, एंगर, इरिटेबिलिटी। Only remedy is Adamus, which covers all these 3 things. ओ या यस सर, यस सर, यस सर। Aversion to husband, anger towards husband, irritability towards husband. Can you imagine? Now let's not take anger towards husband. इसमें तो ज्यादा एंगर है क्योंकि गुस्सा है ना उससे बहुत ज्यादा। तो बैम्बुजा कालीफॉस नेट्रम सिलिकाटा एडामस। Ailments from being deceived, wrong suffered, और क्या था कि I have no way out. This is delusion. Hello. She has ट्रैप्ड no सर, way out, na? यस सर। This is trapped. So this is a very good remedy which has trapped and wrong suffered. Delusion wrong suffered and delusion trapped. देखो इसमें भी कितने कम लोग हैं, देखो। एंड शी इज फिल्दी रिच, उसने दो सोची नहीं पैसा खर्चे करते वक्त ना कभी भी। तो ये क्या है? कौन करता है खर्च बिंदास, बगैर देखे दुखे? जो भरोसा दिखाता है ना। हेलो। यस सर, यस सर। तो इसका भरोसा टूटा है ना, तो उसको क्या बोलोगे आप? बिट्रेड। यस, इट्स अ बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट ना। यस सर, डिलीजन बिट्रेड ना, क्योंकि इसने यस भरोसा सर। किया ना। हेलो, इट्स अ बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, रिमेंबर, भरोसा तोड़ना इज बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, और पीठ में खंजूर भोंकना इज स्टैप्ड, डिसीव ना। टू मतलब डिसीव्ड। हाँ सर। आपके साथ में रहकर आपको धोखा देना इज डिसीट, आपको पता नहीं चलता डिसीट में ना, स्लाई ना। और बिट्रेयल आप भरोसा करके भरोसा तोड़ते हैं, वो होता है बिट्रेयल। तो इसमें दोनों है, कैन यू इमेजिन, डिसीट एंड बिट्रेयल। देखो कितना अच्छा है, एलिमेंट्स ऑफ बिट्रेयल एंड डिलीजन, बिट्रेयल, ये दोनों भी लो आप, कितना अच्छा है। देखो कितने कम रेमेडी एडामस हो रही है। तो डिसीट एंड बिट्रेयल दोनों जिसमें होता है उसमें एडामस आती है इस तरफ। अगेन रॉन्ग सफर ट्रैप्ड, है ना? रॉन्ग सफर ट्रैप्ड ले लो, ठीक है। इसमें मेन क्या था ना, ये स्पिरिचुअल 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 चल रहा था बहुत ज्यादा। और इतना इसने इतना सब कुछ उसके साथ रखा, एकदम ट्रांसपेरेंसी रखी। तो क्या होता है एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, क्या होता है सबसे मेन चीज? ट्रस्ट। ट्रस्ट, बराबर। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेप्टेंस, डेडिकेशन, डिवोशन एंड selflessness, right? Absolutely no selfishness. This is purity, right? कि साफ ना सब कुछ, एक दूसरे को क्लियर कट दिखना चाहिए जो भी है। इसका है मेन, प्यूरिटी का मैटर था इसका। देखो, ट्रैप्ड, रॉन्ग सफर्ड, प्यूरिटी, एडमस एंड पॉजिटिव। प्यूरिटी होती है ना,
सोने की प्योरिटी होती है, चांदी की प्योरिटी होती है ना, 5% प्योरिटी, 10% प्योरिटी, 100%, ऐसा होता है ना। हेलो, प्योरिटी में परसेंटेज होता है ना। यस सर। हाँ, समझ गए ना। यस सर। प्योरिटी में परसेंटेज होता है ना, कि गोल्ड सर ये 10% प्योर है, 20% प्योर। आप डायमंड लेते हो, आप वो लेते हो क्या, स्टोन्स लेते हो, बोलते हैं ना 99% प्योर है, 20% प्योर है, 80% प्योरिटी, 90% प्योरिटी। तो प्योरिटी एज परसेंटेज, राइट। हाँ सर। तो ये क्या चाहती थी कि हम दोनों का रिश्ता पाक है ना, देखो। तभी तो ये लेडी इतना पैसा, इंजीनियर, पढ़ी लिखी, सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रिट्रीट में मिले, उसको स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन लगा, तो इसने शादी वादी ये सब चीजें कुछ भी सोची नहीं। समझ गए। इतना पाक रिश्ता था, इसलिए उसने वो बच्चा भी होने दिया। ना कोई सोचा, ना कुछ, कुछ भी नहीं सोचा, बरोबर ना। पहली नजर में अगर आप सोचे तो ये लैकेसी जैसे लगती है, कि पूरी डिवोटेड है और सब, नहीं क्या दे दिया इसने, अपने आप को अर्पण कर दिया। फिर इग्नेशिया भी लगेंगे आपको बहुत ज्यादा, डिलीजन मैरिड है ना, कि पूरा सौंप दिया अपने आप को, है ना। हेलो, आर यू विथ मी। यस सर, यस सर, यस सर, लिसनिंग। ये दो रेमेडीज बहुत ज्यादा फील हो गई इसके अंदर, लेकिन अगर रिएक्शन देखेंगे उसका, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी फैमिली, हस्बैंड, इसके इर्द गिर्द घूमती है ना। दे, आप यू कैन टेक द रूब्रिक लव फॉर फैमिली ऑल्सो, है ना। बाकी सब चीजों में नहीं, उसका लव, एग्जॉल्टेड लव रादर, बहुत अच्छा रूब्रिक इसमें, एग्जॉल्टेड लव, है ना। एग्जॉल्टेड ना एकदम, सब छोड़ के, है ना। एग्जॉल्टेड लव ना, दिस इज। सो लेट्स अंडरस्टैंड द रूब्रिक्स ऑफ, I'll explain you। मैंने जो इसके रूब्रिक्स निकाला हूँ, एक छोटा सा, ठीक है, देखते हैं अपन। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। यस सर, Yes। दिख रही है। मैंने क्या दिया अभी, देखो मैं वो बहुत ज्यादा ऐसी पीपीटी वीपीटी वाला बंदा नहीं। क्या क्या था, रॉन्ग सफर्ड, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी ना, आई हैव नो वे आउट, आई कैन नॉट, नथिंग कैन हैपन, डिटैच्ड ड्यूरिंग पोजीशन, डिटैच ना, डिसेप्शन, देखो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसेप्शन, डिस्करेज्ड, डिफीटेड, बोली उसके सर में हार गई हो, क्योंकि हार गई ना, उसने बोली थी मैं भूल गया, एस्केप डिजायर टू ना, ये मेरे पास में आई एस्केप करने के लिए ना, हेलो, टू एस्केप फ्रॉम द सर्जरी, राइट। वेल्थ, डिलीजन, वेल्थ, अब क्या हो गया, वर्थलेस ना। क्या फीलिंग आ रहा है इसको, कि इसने मेरे कीमत ही नहीं की ना। हेलो, समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर। वर्थलेस ना, जो इसकी वर्थ थी असल में, सच में ये हीरा है, लेकिन उसकी कीमत ही नहीं, अंधे के हाथ में हीरा। हेलो, बराबर ना। अंधा नहीं है, वो तो लालची के हाथ में हीरा है, समझ लो, समझ लो। तो इंसल्टेड ही इज डिलीजन, इनविजिबल ना। कैसे लोग हैं, क्योंकि हस्बैंड को जैसे ये दिखाई ही नहीं दी ना, वेन, जब ये जो कर रही है, जो भी इसके इतने जो एफर्ट ले रही है, सब कुछ कर रही है फैमिली के लिए, वो हस्बैंड के लिए क्या है, इनविजिबल है ना, ओल्ड, बराबर ना। अपने आप को उसने ओल्ड बना लिया, देखो कितना अच्छा है डिलीजन, ओल्ड ही इज, ही है, लेकिन वहां पर भी, बिकॉज बाय चॉइस ओल्ड है ये, उसके अंदर ही है, मगर ओल्डनेस है अभी भी। आई यू गेटिंग मी। सेपरेटेड यस फ्रॉम द सर। वर्ल्ड ना, सारा घर दार छोड़ के, सब छोड़ के इधर आ गई, सिर्फ फैमिली और इसके लिए, बराबर है। डिलीजन ट्रैप्ड, शी इज नॉट अप्रिशिएटेड, डिलीजन नॉट अप्रिशिएटेड, एंगर, एंगर टुवर्ड्स हस्बैंड देखा हमने, है ना, एवर्जन टू हस्बैंड, वो सब देख लिया, इरिटेबिलिटी देख लिया, कंसोलेशन, सिंपैथी, डिजायर्स, देखो आइडियलिस्टिक है। तो बोला ना, ये क्या है, आइडियलिस्टिक। ये जो रिश्ता होता है कैसा होता है, आइडियलिस्टिक एंड, आप ये दो अगर जोड़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। आइडियलिस्टिक एंड प्योरिटी डिजायर, देखो, आइडियलिस्टिक और प्योरिटी डिजायर, ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन, देखो मतलब ये इट इज सच अ लवली कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियलिस्टिक एंड प्योरिटी डिजायर।
आइडियलिस्टिक के अंदर वो रेपर्टरी में है ना. इफ यू टेक दिस टू, आप देख लो एडम एसन इग्निस अल्कोहल, देखो कितना अच्छा है ये. आइडियलिस्टिक, प्योरिटी, डिजायर. इंडिपेंडेंट, इंडिग्नेशन देखो, डिग्निटी गई इसकी. इंडिग्नेशन, एक्सॉल्टेड लव, देखो लव फॉर फैमिली ऑफ कोर्स रहेगा क्योंकि कार्बन कंपाउंड है ना. पेशेंस, कितना पेशेंस है देखो. पर्टिनेसिटी, ये समझ में आया आप लोगों के? पेशेंस समझ में आया? यस सर. कितना सब्र से ये काम ले रही है जीवन में. समझ में आ रहा है ये चीजों को? मतलब ये लेडी आज भी लेकिन अभी भी अपने पेशेंस में है, बराबर ना? हेलो. तो पेशेंस, पर्टिनेसिटी, प्योरिटी, देखो आप पेशेंस, आइडियलिस्टिक, प्योरिटी, डिजायर, देखो. देखो प्योरिटी, डिजायर एंड पेशेंस, अगेन पॉजिट्रॉन, तो इसके साथ साथ पॉजिट्रॉन बहुत चलेगा. लेकिन ये देखो आप फिर आइडियलिस्टिक एंड पेशेंस, ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन देखो. पेशेंस एंड आइडियलिज्म, ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे ना जो सबर वाले हैं और आइडियलिस्टिक है. हेलो. ये इट इज वन ऑफ माय फेवरेट रेमेडीज, एडमस. पेशेंस एंड आइडियलिज्म, अपने एक आदर्श को लेकर सबर से जीवन आगे लेकर चलने वाले होते हैं ना ऐसे लोग. हेलो. सबर से काम लेकर अपने, और उसके साथ में अपनी डिग्निटी को लेकर चलते हैं. इंडिग्नेशन है उसके अंदर, है ना. लेकिन पेशेंस एंड आइडियलिज्म, उसके साथ अगर आप वेल्थ जोड़ दो तो फिर तो मजे ही मजे. हेलो. ये मेरा थोड़ी था, मैं सबको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते ना लोग. आर यू गेटिंग मी? हेलो. So this remedy has so many lovely combinations that I have seen. Especially with this combination, I use this remedy. मतलब जिनको मैं पहले लाइकोपोडियम दिया करता था, है ना, या फिर फास्फोरस दिया करता था पेशेंस के कारण. हाँ, कैलकेरिया भी, स्पॉन्जिया भी दिया करता था किस किस को, बिकॉज ऑफ द पेशेंस. बट इग्नेशिया भी आई हैव गिवन सच पेशेंस इन माय लाइफ बिफोर. बट बिकॉज ऑफ दिस केस इज लाइक नाउ द लेडीज, ये 10-11 साल पुरानी केस. इसके बाद में मैंने इतना पढ़ा ये एडेनोस को. उसके पहले मैं यूज करने के लिए डरता था, तो उसके पहले मैं 2 बार यूज किया था फ्लैग में. एक बार सही गया था प्रिस्क्रिप्शन, एक बार गलत गया था. तो जितने भी अपने डिसेप्शन एंड बिट्रेल बताया ना मैं, बिट्रेल इज ऑफ ट्रस्ट. डिसीट, आपको पता नहीं चलता है कि आपको धोखा दे रहा है. आप किसी पे भरोसा करते हो और भरोसे के बदले में जब आपको कुछ चीज मिलती है उल्टा के, दैट इज बिट्रेयल. रिमेंबर, बिट्रेयल इज ऑफ ट्रस्ट. डिसीट यू आर नॉट अवेयर ऑफ. स्लाई ना, डिसीट का रूब्रिक क्या है? स्लाई. डिसीटफुल अगर आप देखोगे, स्लाई मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा. देखो डिसीट का रूब्रिक है स्लाई. डिसीटफुल, स्लाई, ऐसा रूब्रिक है. देखो डिसीटफुल इज स्लाई. स्लाई मीन्स क्या? द डिसीवर लाइज इन ऑर्डर टू गेट हिज ओन वे. Patients will not reveal the existence of symptoms of their own accord. They must order. One may lie without necessarily being deceitful. देखो डुप्लीसिटी रहती है ना लोग. देखो डुप्लीसिटी का भी दिया है इन्होंने, क्या दिया? डुप्लीसिटी denotes a certain poverty of spirit. It's a character trait, a mechanism whereby indifference or praise conceal or underlying attitude of criticism. मतलब ये लोग आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको धोखा देगा. एक बहुत अच्छा रूल है ना, कंप्लीट में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है. स्लाइड डिसीटफुल दिया हुआ है. कंप्लीट में तो स्लाइड दिया हुआ है डायरेक्ट. स्लाइड डिसीटफुल मतलब इवेडिंग लुक के लिए ये रूब्रिक इज वन ऑफ द
DD टू इवेडिंग लुक, क्योंकि कई बार लोग आपसे नजरें नहीं मिलाते, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको कई बार हम लोग इवेडिंग लुक में आके फंस जाते हैं। तो कई बार लोग आपसे नजरें नहीं मिलाएंगे जब पेमेंट की बात करेंगे, है ना, खास करके जब आपसे दवाई उधार में लेकर जाएंगे या कुछ भी ऐसा, तो उस वक्त आपसे नजरें नहीं मिलाएंगे वो लोग। तो ऐसे लोग डिसीटफुल होते हैं, स्लाई होते हैं, काला चश्मा पहनने वाले जो नजरें, मतलब इसका भी है चश्मा, आपका समझ लो, नजर का भी है, इवन इफ इट्स स्पेक्टेकल लाइक आई एम वेरी, बट दे वेर इट सनग्लास टाइप का वगैरह, है ना। तो सनग्लासेस मतलब धूप का तो डे नाइट का तो आपको दिन में वापरना है ना, क्लिनिक के अंदर थोड़ी ना आप यूज कर रहे हो, या फिर आप धूप में यूज करोगे, अदरवाइज थोड़ी नहीं यूज करोगे। तो सच पीपल आर स्लाई डिसीटफुल पीपल, समझ लो। स्लाई का अपना खुद का ही होता है, तो था ही ना वो इंसान, उसने धोखा दिया ही है उसको ना। डिड यू अंडरस्टैंड डॉक्टर द डिफरेंस बिटवीन बिट्रेयल एंड डिसीट? Yes, sir. Yes, sir. ओके श्वेता, आई एम हैप्पी। तो रिमेंबर, बिट्रेयल इज ऑफ ट्रस्ट, रिमेंबर, सब सामने वाला भरोसा करके तोड़ता है। नहीं, अपन बोलते नहीं कि देखो हाँ, धोखा नहीं देना, मैं पहले धोखा खा चुकी हूँ, होता है ना, ऐसा अक्सर होता है ना। ये हाईवेज का होता है ना, डॉक्टर साहब देखो मैं 4 डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, कहीं फर्क नहीं पड़ा। आप मुझे बता देना प्लीज, अगर से नहीं फर्क पड़ने वाला, या फिर अगर सिर्फ कोशिश भी करने वाले हैं आप, तो मुझे बता देना, मुझे आप गलत होप मत दो डॉक्टर साहब। ये ट्रूथ टेलिंग द प्लेन एंड फियर बिट्रेयल, ये हाईवेज का सेंटेंस है। ये अक्सर प्यार में भी होता है ना, ये मैं कॉलेज में हमेशा पढ़ाता था, तो ये बोलता हूँ कि लड़के लड़कियां जब पहली बार दिल टूटा होता है, तो फिर जब दोबारा प्यार करते हैं, तब बोलते हैं ना कि देखो मैं पहले धोखा खा चुकी हूँ, प्लीज दोबारा नहीं खाना चाहते आप, बता दो आपका जो कोई इंटेंशन है। जो भी हो, ऐसा हो लड़की, समझ रहे हो? So this is Adamus from my side. Any question that you all have about Adamus? बड़ी रेमेडी है, इसके अंदर मेन वेल्थ एबंडेंस याद रखिएगा, हाँ? और प्यूरिटी बहुत काम करोगे इसमें, प्यूरिटी, पेशेंस, रिमेंबर, इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस, बोथ है इसमें, इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस, कॉन्फिडेंट के बाद में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिल्यूजन, वर्थलेस, तो अपने एकदम वर्थ ही, इतना उसका वर्थ है लेकिन उसकी किसी ने कीमत नहीं जानी, वर्थलेस कर डालते ना उसको। वही ना, अंधे के हाथ में हीरा वर्थलेस होता है ना, मतलब उसकी कीमत जाना, एप्रिसिएशन। अच्छा, ये खुद के लिए नहीं जा रही थी, इसमें फंसने का ट्रैप क्या है, इसमें फंसना है, इसमें फंसने का ट्रैप है अपना डिलीजन मैरिड, दूसरा है इग्निशिया, इसके अंदर आप बहुत बार फंसोगे, प्लीज रिमेंबर, ये रेमेडी में इग्निशिया बहुत बार फंस सकते हैं। इनको ऐसी केसेस को कई बार इग्निशिया लगता भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा ऐसे 2 केसेस में हुआ है, इनके अंदर दे गॉट बेटर विद इग्निशिया फॉर अ व्हाइल, एंड देन अगेन had to shift to Adamus, of course, but Ignitia gave them relief of many things. Okay, 2 of my cases, one was a male, one was a female. Adamus is useful in males also very much, क्योंकि आइडियलिज्म के अंदर आपको बहुत मिलेंगे ऐसे लोग, 40, 50, 55, 60, 70 के लोग बहुत मिलते हैं जो आइडियलिस्टिक होते हैं, और पेशेंस होता है, ये याद रखो, सबर और तत्ववाद, ये 2 चीजें अगर आपको मिल जाती है, ये कॉम्बिनेशन आप यूज करो, और जरूर मुझे बताना, यूट्यूब पे डालना अगर आपको ये यूजफुल लगा, ये कॉम्बिनेशन, तो प्लीज बताइएगा। यूट्यूब पे अभी लेक्चर अपना अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह 2 दिन में, तो उसमें जरूर डालना आप, और आप ढूंढो ऐसे लोग आपके जीवन में या आपके पेशेंट्स की लिस्ट में जो ऐसे हो चुके होंगे पहले। थैंक यू वेरी मच, आई एम डॉक्टर लियाकत, डू वॉच ऑल ऑफ आवर लेक्चर्स। और जो इनिशियली जिनके हमारे ऑडियो थोड़े खराब थे, मैं उसको री रिकॉर्ड करके फिर से डालूँ। Yes, and my show of poetry is there on 28th of June in Pune. All my shows are going houseful now. This is our 5th show. Okay, so please do come. Pune, उसका आ जाएगा पोस्टर मेरे इंस्टाग्राम पे। Thank you very much. Sangeeta, anything you want to say, बेटा? Is it okay if we wrap up? हाँ बेटा, Wrap up करें, हो गया? हाँ हो चुका। जरा बुक का भी बताओ आप, when is the next edition coming? हम्म,
book. बुक आ जाएंगी, यस, दैट्स अ प्रॉमिस, जल्दी, इसी साल, प्रॉमिस। Okay, sir. So we'll wrap up. Yeah. Thank you, dear sir, for this eye-opening session. It is always a delight listening to your lecture. Thank you to all the mentors of PHF for making this session possible with such regularity. Thank you to all the doctors who took out time to attend this session. We will see you next Thursday. Have a nice evening. Nice. Thank you, sir. Thank you, sir.